नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और चिली के बीच अंटार्कटिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहित 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौतों का हुआ आदान प्रदान। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। लोकसभा में कल 12 बजे रखा जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर 8 घंटे होगी चर्चा। भाजपा ने लोकसभा में अपने सभी सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप किया जारी। संसद के दोनों सदनों में हुआ विधायी कामकाज। राज्यसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा जारी, तो लोकसभा में आज कोस्टल शिपिंग बिल 2024 जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया पेश। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, भाजपा और एनडीए के डीएनए में है किसान कल्याण। किसानों के बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है मोदी सरकार। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 18 की मौत, कई घायल मजदूरों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। और आइए इस वक्त आपको हम सीधे लिए चलते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। आइए चलते हैं। Say we'll have to make sure that we raise revenues but not burden the people. There is no difference on that. Punjab doesn't speak differently from Gujarat. Gujarat doesn't speak differently from Tamil Nadu. Everybody wants to raise revenue. But they also look at amazing number of papers, sheets after sheets for the data which is before them. How much did we charge earlier? By reducing, what is it going to be foregone? And then again talk about it. That is why sometimes people think we are haranguing ourselves in the GST Council, but I'm glad for it. Because eventually people are looking at the facts before them and taking a call, a collective call, because it's one nation, one tax. But that kind of an approach, the spirit that all of us will have to be conscious to raise the revenue, and no politics on that. But equally, we'll have to be sure we don't burden the people. So if for the larger costs, when you talk of revenues, there is a sense which is we have to be responsible, but yet there is no politics here. A BJP ruled state is not differently speaking from a Congress ruled state. Everybody says we need revenue. And there are times when I go with a proposal saying, can we cut it down here? I have 10 different ministers, both from my party and other parties, also equally saying, no, please don't do it. But when I come out, I cannot say, look, I went with a proposal to cut, the rest of them didn't agree. Because that's the sense of being responsible to the body which looks at data and says, look, it's all right, you brought a proposal, but it may not work. That's where, in an extended fashion, I'm saying, when you have the right data, put out dispassionately, states will see where they are going to have to start from and how far they can go. Beyond a point, it can be harmful for the state, is not established by strong speeches, but only with hard data. And that coming from, let's say, NITI together with NCAR can bring that authenticity, that heft to the data, and that can be taken seriously by every state administration. So if I go by the example of the GST Council, I may have to differ from BVR for a minute, the hard and the soft look. In the GST Council, there's no hard, there's no soft. Everybody says money. But they are conscious that it cannot be by burdening on certain items which are of daily use for common people. So
through the GST Council, we are able to prove that the hard look is actually the realistic look. Whereas when it comes from the Finance Ministry, everybody in the Parliament would say, that's hard on us. Whereas when you go through the GST Council, which is the body where everybody sits with papers before them, data before them, all differences vanish. So I expect the States Economic Forum to have that kind of an impact, saying, look at the reality of your state. Would you want to look at it? I was just looking at that bar chart, which showed the national average somewhere between the top 14 are there, the bottom 14, clearly showing, was it the per capita? Per capita. It was so clearly shows that the top 14 are actually doing the heavy lifting. The sense of having to contribute. And that's why when the Honorable PM says, can states plan for themselves? Nobody is asking you to do A and not B, but you decide whether you want A or you want B or you want C, but do decide what is your role towards Viksit Bharat. And I'm happy many states are now coming up with a plan for themselves. But data tells you some hard truths, something which is difficult to gulp. States which call themselves developed are ridden with huge debts. I say it even with the authority of Article 293 is not going to be received well by anybody. And I consciously say this, I know seasoned bureaucrats are seated here. When they are in the state, the voice is different. And I wish all of them get posted in Finance Ministry. When they come to the Finance Ministry, they say, oh, no, we can't do this. Hey, you were there yesterday and from the state you said something different. That kind of efficient senior bureaucrats, and why states and center, I can say when they are in some departments, they say, no way, you have to give this. And the next day, post them as expenditure secretary. The voice changes, the priorities change. But that's the closer look at data. That's why I think your idea of putting the data out, engaging with researchers, engaging with the observers of the Indian economy is important, but I would think it is equally important for you to take it to the states, get them on board, let them see what is before them, let them see how other states are managing. One might want to see how other states are managing debt, but a second one would want to see how their per capita income is rapidly growing and what is it that they have to do. So you need to have this now as a platform for engagement with the states. You should become the catalyst, NCAR and NITI, you should become the catalyst. Make sure the states understand the importance of such data. And after that, yes, all of us can be on the same page saying each state is different, you can't have one size fits all. So this project can be differently allowed for them and a third project need not be applicable to a state at all. So we can have that fantastic flexibility in resource allocation, provided you've already given them this advantage of data. And तो राज्य आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और अभी हम विभिन्न राज्यों की खबरों की ओर चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए राज्यों की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जन आस्था का सम्मान करने और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में एक बैठक के दौरान मंजूरी दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी लागू। आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब की बिक्री पर कठोर दंड का प्रावधान। दोषी पाए जाने पर जेल की सजा और भारी जुर्माना। शराबबंदी का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना, श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण देना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम। मंगलवार 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। शराबबंदी का आदेश उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, मंडलेश्वर जैसे धार्मिक जगहों पर लागू किया गया है। दरअसल महेश्वर में मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये कदम जन आस्था और धार्मिक दृष्टि से श्रद्धा के 19 नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में प्रभावशाली है। बता दें कि जिन धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया उसमें 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। हमने महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर इनकी नगरीय सीमाओं को, जैसे उज्जैन में थी तो 1 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी थी। हमने कहा इसका एरिया डिसाइड होना चाहिए, इसलिए नगरीय क्षेत्र में हर एक की सीमा घोषित करने का प्रयास किया है और युक्त तरीके से हमने अपने 17 शहरों में इस शराबबंदी को किया है, जो पुरानी शराबबंदी का थोड़ा संशोधित रूप है। मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम धार्मिक और पर्यटन स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उज्जैन महाकाल की नगरी होने के नाते आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखती है। मैहर में शक्तिपीठ होने के कारण लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और संयमित वातावरण मिले, जिससे राज्य की धार्मिक पहचान और मजबूत हो। श्रद्धालु भी शराबबंदी के फैसले से काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। जो बंदी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। जो फैसला सरकार ने अभी लिया है, ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जहाँ जहाँ हमारा देव स्थान है, लगभग 17 नगर पंचायतों में वहाँ शराबबंदी किया है। अगल बगल में जो घर है रहायशी इलाके हैं, वहाँ की लेडीजों को आना जाना निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ पर हम लोग बाजू में रहते हैं तो हम लोग जानते हैं रात में 12-1 बजे रात तक दारू बिकती थी यहाँ पर, और कांच की बोतलें घर के अंदर तक आती थी, फेंकी जाती थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ों से शांति मिल गई यहाँ पर। अच्छा माहौल रहेगा। जो यहाँ से लेडीजें या कि कोई भी निकलता था तो एक हीन भावना से देखा जाता था, तो वो माहौल अच्छा रहेगा और सब बढ़िया यहाँ पे रहेगा। इस कदम के साथ मध्य प्रदेश कई अन्य भारतीय राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शराब निषेध नीतियां लागू की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं बिहार की ओर। बिहार सरकार ने राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी। इसकी घोषणा राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा के बजट सत्र में की थी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिजली दरों में कमी, ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को फायदा, स्मार्ट मीटर लगाने वालों की होगी बड़ी बचत। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दरों की घोषणा की। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली। बिहार में अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का फायदा दिखने लगा है। इससे बिजली वितरक कंपनियों का तो मुनाफा बढ़ा ही है, इसका लाभ अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। बिहार सरकार ने 1.25 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर नई बिजली दर की घोषणा की है।
जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। ये दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नई दर लागू होते ही राज्य के ग्रामीण इलाके में घरेलू और कुटीर ज्योति कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई है। ये लाभ महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा। अन्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ के लगाने के बाद जो वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम, उनका कैश जो फ्लो है वो तो सुधरता ही है, साथ में जो उनका रेमिटेंस है, जो रेवेन्यू रियलाइज करते हैं, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप केवल लास्ट के 2 वर्षों का अनुभव देखें तो पिछले साल साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कभी 450 करोड़ का मुनाफा पहली बार दर्ज किया था और इस वित्तीय वर्ष में करीब 150 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। तो यह दिखाता है कि वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और यह आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है तो इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिहार में अभी तक 62 लाख से ज्यादा प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने पर 3% की छूट मिल रही थी। ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखा है तो उन्हें 69 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलती है। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के 6 महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार का अच्छा कदम है, इससे हम उपभोक्ताओं को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम लोग हाई बिजली जलाते हैं तो ज़्यादा बिल आता है और 25 पैसे पर यूनिट कम हुआ है तो अच्छा कदम है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अभी 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 7.42 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है, लेकिन प्रीपेड मीटर वाले शहरी उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट कम राशि देना होगा। प्रीपेड मीटर लगने से बिजली की चोरी से लेकर के बिजली बिल में गड़बड़ी तक पर लगाम लगी है। यही कारण है कि इस बार कंपनियों का रिकॉर्ड मुनाफा हुआ है। सरकार ने इसे देखते हुए लोगों को सब्सिडी दी है और बिजली बिल की दरें भी नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हमारे देश में कई छोटे बड़े पुस्तक मेले समय समय पर लगते रहते हैं। उन पुस्तक मेलों में आपको साहित्य जगत के विभिन्न लेखकों की किताबें मिल जाती हैं, लेकिन आज हम आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में लग रहे ऐसे पुस्तक मेलों में लेकर चलते हैं जहां साहित्य जगत की किताबें नहीं बल्कि स्कूल की कॉपी किताब और यूनिफॉर्म आदि मिल रही है, वो भी भारी छूट के साथ। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान। प्रशासन ने शिक्षा माफिया पर लगाम लगाने की कही बात। किसी खास दुकान से किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाने पर होगी कार्रवाई। स्कूल और बुक स्टोर्स की मोनोपोली तोड़ने के लिए पुस्तक मेलों का आयोजन। पुस्तक मेले में डिस्काउंट के साथ मिल रहा है यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी। पुस्तक मेले से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ हो रहा है कम। निजी स्कूल और पुस्तक विक्रेता की मोनोपोली तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्थानीय प्रशासन पुस्तक मेलों का आयोजन कर रहा है। जबलपुर में लगे इस पुस्तक मेले में 57 दुकानें लगी हैं, जिसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई कोर्स के संचालित स्कूलों की किताबें उपलब्ध हैं। 10 दिवसीय पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में अभिभावकों की भीड़ उमड़ रही है। पुस्तक मेले में यूनिफॉर्म, कॉपी किताब तथा स्टेशनरी सामान डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अभिभावक उचित दाम में सामग्री मिलने के कारण राहत महसूस कर रहे हैं। पुस्तक मेला है, बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पे पुस्तकों में, कॉपियों में डिस्काउंट मिल रहा है जो कि अभिभावकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पेरेंट्स को बड़े उत्साहित हैं कि यहाँ पर आके लेने में उनको एक कॉपी एडिशनल डिस्काउंट भी हम लोग दे रहे हैं। कॉपीज पर भी एक कॉपी के साथ एक कॉपी फ्री दे रहे हैं, बुक्स पर भी डिस्काउंट दे रहे हैं और हर चीज स्टेशनरी, बैग, बॉटल भी उनको एक ही जगह सारा वन रूप में यहाँ मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हेल्प डेस्क भी लगाया गया है, यदि किसी पेरेंट्स को कोई स्कूल के बुक्स से शिकायत है, कुछ है, तो वो भी देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनके तरफ से क्या कमियां रह गई है उसको उपलब्ध कराए, जिसमें कि पेरेंट्स परेशान ना। वहीं राज्य के सागर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर आदि शहरों में भी इस तरह के पुस्तक मेलों से अभिभावकों को राहत मिल रही है। जानकार मानते हैं कि इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है, साथ ही किताब कॉपियों के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। स्कूलों के जरिए जो धंधा एक कह सकते हैं हम कि धंधा इन्होंने बना लिया था, कि एक बिजनेस बना लिया था, ये सरकार ने कहीं न कहीं से तोड़ने की कोशिश की है, जो एक बहुत कामयाब कोशिश। पुस्तक मेलों से निश्चित ही सभी अभिभावकों एवं छात्रों को सही दाम में सही पुस्तकें
सरकार के माध्यम से पहुंचाई जा रही हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में प्रशासन का प्रयास यही है कि ऐसी कोई गतिविधि ना हो कि अभिभावकों को एक ही जगह से पुस्तकें, कॉपियों खरीदने के लिए बाध्य किया जाए या किताबों का अधिक मूल्य उनसे लिया जाए। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दुकानदारों और स्कूलों के बीच की मोनोपोली की शिकायतें कई वर्षों से मिल रही थीं। जन सुनवाइयों में भी कलेक्टर के पास ऐसी शिकायतें आती थीं। पुस्तक मेलों के जरिए इसका समाधान करने का प्रयास किया गया है। अगर ये मॉडल सही साबित होता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो नेक्सस दुकानदारों और स्कूलों के बीच बना हुआ है, इसको तोड़ने में आसानी होगी। आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपके ब्रेक के बाद। बात करते हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार पर विपक्ष द्वारा हिमाचल में चिट्टा माफिया को संरक्षण देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। पक्ष विपक्ष की इस राजनीति के बीच हिमाचल का युवा लगातार नशे की चपेट में जकड़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में नशा माफिया लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि नशे को खत्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में जो नशा तस्करी के मामले हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर रोज नशा तस्करी से संबंधित गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है और इसके बावजूद भी नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने में पुलिस प्रशासन कामयाब नहीं हो पा रहा। हाल ही में चिट्टा माफिया को सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए भाजपा ने बड़े स्तर पर शिमला में एक प्रदर्शन भी किया था, जबकि दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने हाल ही के विधानसभा बजट सत्र में नशा विरोधी संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित किया है। इसके बाद प्रदेश में संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 के तहत नशे के सौदागरों को आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। हिमाचल पुलिस के मुताबिक पिछले 6 सालों में प्रदेश में नशा तस्करी के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की करीब 0.24% आबादी नशे की चपेट में है। पुलिस के मुताबिक साल 2017 में प्रदेश में NDPS के तहत 1221 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद साल 2018 में 1722, 2019 में 1935 और साल 2020 में 2058 मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में प्रदेश में नशा तस्करी के 2223 मामले दर्ज हुए और साल 2022 में 2226 मामले सामने आए। इधर हिमाचल सरकार ने इसे लेकर नशा विरोधी संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसे लेकर सरकार का तर्क है कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। पिट NDPS अधिनियम के तहत 88 प्रस्ताव डिटेनिंग अथॉरिटी को भेजे गए, जिनमें 2024 में 4, 3 नूरपुर में, 1 हमीरपुर मामले में नजरबंद डिटेंशन ऑर्डर पारित किए गए। ठोस कदम उठाते हुए अब तक 12 मामलों में नजरबंदी आदेश पारित किए। हालांकि नशा माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी लगातार जुटी है। पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते में ही नशा तस्करी के आरोप में 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उधर ऊना में नशे का जाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने ऊना में 2 तस्करों की गिरफ्तारी की है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी नशा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल SIU ऊना की टीम ने ऊना थाना के अंतर्गत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 11.44 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार किया है।
इस बीच शिमला में भाजपा की राज्य स्तरीय रैली में जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल समेत भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर नशे पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। विपक्ष का दावा है कि चिट्टा माफिया को प्रदेश सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से प्रदेश में नशा लगातार पैर पसारता जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में नशा तस्करी का जो जाल है पूरा वो इस हद तक फैल गया है कि प्रदेश का युवा लगातार इसकी चपेट में आता जा रहा है और प्रदेश को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये खोखला करता जा रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डी न्यूज। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को